Hello students. So in the previous lecture we have discussed about the acute angle or the obtuse angle. What happens when the acute obtuse angle is there? So when the theta is an obtuse angle, means I will show you the figure. Theta is an obtuse angle. You see this is the theta, this is the theta, this is an obtuse angle. थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा एट द टाइम ये जो स्फेरिकल ड्रॉप दिखाई दे रही है ये है मरकरी ऑन द ग्लास केस. तो आप देखिए टेंजेंट टू दिस line makes with the x-axis theta angle which is the obtuse angle greater than 90 degree. In that case what will happen, the cohesive forces between the mercury molecules is greater than the adhesive force between mercury and glass. Therefore, it takes the spherical shape. Now, let us see the case of acute angle. Now, this is the case of the acute angle. This is water drop on the glass surface. Now, see water drop on the glass surface. The cohesive forces between the water molecules is less than the adhesive force in between the water and the glass molecules. मीन्स जो वाटर और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो प्रीडोमिनेट कर जाता है देन द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ and therefore this type of shape is taken. The tangent goes to this way and the angle is acute. Okay, so these two cases are there on the basis of which we can say whether the drop will take the spherical shape or will be sticking to the surface, whether the liquid will be sticking to the surface or not. Okay, now let us discuss the case of the drops and bubbles with respect to these concepts. So first question rise in our mind is why the drops and bubbles are spherical. So for any given volume, the surface with the minimum energy is the surface with the least area. So if we take a sphere, a cone, a cylinder and other cuboid and cube, so we will see that for a given volume, the minimum surface area is covered by the sphere. That is why to minimize energy on the surface, the drop will take the spherical shape. So the raindrops are spherical, you see. Okay. Uh, of course, the gravity and other forces should be ineffective and therefore the drops will be spherical. Okay. Now let us see an interesting consequence of the surface tension in the drop and bubbles. So pressure inside a spherical drop is more than the pressure outside. How do we understand this concept? Let us see the blackboard for this. Now see, I have shown a sheet. This is a sheet, planar sheet, vertical planar sheet, and I have applied a horizontal force P1 and P2 from both the sides. And if the sheet takes this shape, so what can we say about this? So that means obviously P1 is greater than P2. The pressure on this side is more than the pressure on this side. P1 is greater than P2. That's why this is taken shape like this. And from this observation, we can see that we can say very well that if the curvature is like this, so P1 is greater than P2. So this is, we say, we name it PI, pressure inside. And this is what we say PO. So we say that the PI is greater than PO. This concept should be very well understood. Okay. Now see, suppose a spherical drop of radius r is in equilibrium. Okay. So obviously, as I told you that Pi is greater than PO. Okay. Now suppose its radius is increased by delta r amount. Means suppose it is a balloon, the type of balloon, and we have increased its radius. You see here, earlier radius is r, and we have made it r plus delta r, means delta r increase in the radius we have done. So what is the change in the surface area? The new surface area is 4 pi r plus delta r square. 4 pi r square is the area of the sphere. So 4 pi r plus delta r square minus 4 pi r square. This is the change in the area. And what is the surface tension?
surface tension is given by force per unit area. force per unit area से हम surface tension को define कर चुके हैं. Therefore, force per unit area is this. So this is the change in the area and this is the force per unit area. So what we will say, that is the force into the that force will come. So okay, what is the amount of that thing? Let us expand this 4 pi r plus delta r whole square. A plus b whole square formula we will apply, r square plus 2r delta r plus delta r square. Okay, 4 pi is there, minus 4 pi r square kept here. So you see this 4 pi r square and this 4 pi r square cancels out. Okay, so we have 8 pi r dr delta r, 4 pi into 2 r dr, 8 pi r delta r plus 4 pi into delta r square. Now delta r is sufficiently small, so we can neglect this factor. So we have 8 pi r delta r. Okay, so 8 pi r delta r is the change in the area and S is the surface tension. Okay, S is the surface tension. So what is this? This is the energy. Surface tension is surface energy per unit area. This is what? S is surface energy per unit area. Okay, and this is the area change. So area into surface energy per unit area is the surface energy total. The total surface energy we are getting this, and we are having one surface. Remember that we are having one surface because we are talking about a liquid drop. We are talking about a liquid drop. Let us see what one surface and two surface concept. See, this is a liquid drop in air. So only one surface is open to air. Air and liquid interface is only one. So this is one surface. Okay. Now see, this is air bubble in liquid. This is air bubble in liquid. So there is only one interface between the air and the sorry, air and the liquid. So one surface area. Now let us see this. Here, this is a soap bubble in air. If it is a soap bubble in air, so बाहर air है, फिर ये soap है, अंदर air है और ये soap की layer है. तो इसका मतलब है there are two interfaces between the air and the soap. एक अंदर वाली layer और एक बाहर वाली layer. इसके लिए दो surfaces हो जाएंगे इसके. तो ये हमारा जो केस चल रहा है, this is for the two surface, one surface. This is liquid drop in the air. अगर ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो ये जो एनर्जी जो है, हमने जो उसको रेडियस को इंक्रीज करने में जो एनर्जी हमने एक्सपांड की है, ठीक है, वो एनर्जी किस वजह से मिली है? वो एनर्जी मिली है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द बबल. क्योंकि प्रेशर इनसाइड इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड, सो देयर विल बी ए प्रेशर डिफरेंस एंड वी हैव क्रिएटेड ए प्रेशर डिफरेंस Pi minus Po and the radius is increased therefore. ओके, सो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वर्क डन जो हमने किया वो हमें सरफेस एनर्जी के फॉर्म में मिला. तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. सो Pi minus Po, the pressure into the area of the spherical drop is 4 pi r square. Pressure into area, this becomes the force. ये टर्म क्या हो गया? ये फोर्स हो गया. एंड डेल्टा r is the displacement. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? वर्क डन. So that work done by us has been converted into the surface energy. So equate both of these work done. So Pi minus Po into 4 pi r square delta r is equal to what? Is equal to this 8 pi r delta r. Right? इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिल जाएगा Pi minus Po is equal to 2s upon r. ठीक है, एस को किसी किसी किताब में टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस टेंशन. ठीक है, 2t अपॉन आर बोलते हैं इसको. तो Pi माइनस Po क्या हो गया? 2t अपॉन आर या 2s अपॉन आर, वट एवर यू रिमेंबर. ठीक है, तो अभी वन सरफेस एंड टू सरफेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है. अब बबल जो है उसमें दो सरफेस होते हैं, बबल ऑफ सोप इन एयर दो होंगे. तो उस वक्त फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उस वक्त फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, Pi minus Po 4s अपॉन r हो जाएगा.
अभी हमने सिंगल सरफेस के लिए निकाला था तो फॉर्मूला क्या आया, 2s/r था। और टू सरफेस वाले केस के लिए 4s/r हो जाएगा, मतलब उसका डबल। ठीक है। नाउ लेट अस द डिस्कस द कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज फिनोमेना क्या है? कैपिलरी मतलब एक बहुत पतली नली, बहुत पतली ट्यूब। ठीक है। जैसे कांच की एक बहुत पतली ट्यूब को अगर हम एक लिक्विड के अंदर डालेंगे, कंटेनर में लिक्विड है उसके अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, अगर वाटर है, पेट्रोल है या डीजल है या कोई भी लो विस्कोसिटी लिक्विड है, इट विल राइज अप। ये कैपिलरी राइज फिनोमिना की वजह से प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पेड़ की जड़ों में पानी दिया जाता है और वो पत्ती तक, ऊपर तक पहुंच जाता है, पेड़ के हर जगह पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी, देयर आर स्मॉल कैपिलरीज। इसी तरह हम लोग दिया बत्ती करते हैं, दिया करते हैं ना, रुई का वो बनाते हैं और तेल में उसको डालते हैं, तो उस विक में, उस दिए बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, कंटिन्यूसली जलता रहता है, इस तरह से दिया जलता रहता है। तो दिस इज अ कैपिलरी एक्शन। So, water in a capillary tube rises up in a narrow tube in spite of the gravity. Gravity कहती है कि नीचे जाओ, वाटर नीचे जाना चाहिए लेकिन नीचे नहीं जाता है, ऊपर जाता है। ये है कैपिलरी एक्शन। ठीक है। इस कैपिलरी एक्शन को हम थोड़ा समझेंगे। कैपिलरी कैपिला से बना है। कैपिला का मतलब होता है बहुत थिन, हेयर थिन। ठीक है। जितना ज्यादा पतली ट्यूब होगी उतना ज्यादा ऊंचा वाटर राइज होगा। तो हम ये क्या कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुज रेडियस इज आर ए रेडियस का एक कांच का ट्यूब हम कंसीडर करते हैं और हम मान लेते हैं कि कांटेक्ट एंगल बिटवीन वाटर एंड ग्लास एक्यूट है। ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप टू साइड्स ऑफ द टॉप सरफेस कैसा होगा, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s/r। कैसे होगा, लेट अस सी फॉर दिस फिगर। मैंने फिगर आपको करके ये दिखा रहा हूँ। ये ग्लास कैपिलरी है। इस ग्लास कैपिलरी का रेडियस कितना है, ए है। व्हाट इज द रेडियस, ए। ठीक है। तो ये देखिए ए दिखाया हुआ है। और ये जो अपर मेनिस्कस है, ये वाटर है, वाटर कैपिलरी के अंदर चढ़ा हुआ है वाटर, इसका स्फेरिकल ये कॉनकेव सरफेस दिखाया है, तो इसका सेंटर मान लो ये है। तो इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ दिस बबल होगी। ठीक है। और अगर पी आई हम यहाँ पे बोलेंगे, पी आई प्रेशर इज दिस साइड एंड पी ओ इज दिस साइड, यू वी आर सीइंग दैट पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ। ठीक है। तो लेट अस सी सर्टेन ज्योमेट्री हियर। ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल राइट एंगल है कि नहीं? ये एंगल जो है ये राइट एंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा। हाउ दिस इज थीटा, ये भी देख लेते हैं। ये जो है, ये जो है वाटर का मेनिस्कस है एंड वी आर सीइंग दैट लिक्विड के अंदर बना हुआ एंगल ये है, ये वाला लिक्विड के एंगल बना हुआ एंगल है। ठीक है। दैट इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। और ये जो थीटा एंगल है वो, अब ये वाला एंगल, ये देखिए, ये जो ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बना रहे हैं और ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो गया, दिस इज 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया, दिस इज 90 माइनस थीटा। और अब देखिए ये वाला आर जो है और ये जो टेंजेंट है, रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट इज थीटा। नाउ सी दिस ट्राइंगल एंड cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज में ए अपॉन आर। cos थीटा इज इक्वल टू आर, और इज इक्वल अपॉन cos थीटा और a sec थीटा। आर को हम लिख सकते हैं a sec थीटा। इज क्लियर नाउ? तो हमने ये देखा कि पी आई माइनस पी ओ जो है 2s/r है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s/a sec थीटा, हम इसको लिख देंगे। बराबर है। प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी ओ 2s/a sec थीटा हो जाएगा। लेट अस सी अनदर थिंग कि अगर हमने पूरे कैपिलरी को देखते हैं तो ये पूरी कैपिलरी जो है, ये कैपिलरी है, ये वाला अपर पोर्शन जिसको हमने मैग्नीफाई करके ऊपर बनाया, एच हाइट का लिक्विड इसके अंदर चढ़ गया है। ठीक है। लेट अस सी द पॉइंट्स ए एंड बी। ये दो पॉइंट्स आप देखिए, दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर मस्ट बी सेम। तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट ए। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये पीओ है और ये पी आई है, राइट। तो ये पीओ कितना होगा,
दिस पीओ ऑन दिस साइड, द लोअर साइड, ये जो प्रेशर है पीओ, दैट विल बी हाउ मच, ये पीओ और ये एच रो जी मिलके प्रेशर हो रहा है बी पे, और बी पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, पीआई है। आप यहाँ देखिए, ये जो पीआई है ये कितना है, दिस इज व्हाट, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। और लेकिन इसको हमने पीआई नाम दिया है क्योंकि ये इस तरीके का कर्व है और हम अंदर से बात कर रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ का प्रेशर को हमने पीआई बोला है, विच इज एक्चुअली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे इस फिगर को देखिए, प्रेशर एट द पॉइंट बी कितना हो जाएगा, एच रो जी का प्रेशर प्लस यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, एच रो जी का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो पी ओ यहाँ पे है इधर साइड में, और एच रो जी का प्रेशर ये मिल पे लग रहा है ना। तो पी ओ प्लस एच रो जी इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट बी, एंड प्रेशर एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको कि हमने पी आई बोला है। तो यहाँ से पी आई माइनस पी ओ कितना आया बच्चों, पी आई माइनस पी ओ, यहाँ से आया एच रो जी। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, प्रेशर एट बी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पी आई माइनस पी ओ कितना हो गया, एच रो जी। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एच रो जी विल बी इक्वल टू द 2s अपॉन ए cos थीटा। सो यू सी हियर एच रो जी इज इक्वल टू 2s अपॉन ए sec थीटा, और sec थीटा को ऊपर लाओगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो h का फॉर्मूला बन गया 2s cos थीटा अपॉन ये रो जी नीचे आ जाएगा, ए रो जी। तो किसी किसी किताब में s को t से बोलते हैं, और ये a जो है इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ द ट्यूब, एंड 2t cos थीटा अपॉन r रो जी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे केस में क्या आया, 2s cos थीटा अपॉन a रो जी। दिस इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज। कैपिलरी में, किसी कैपिलरी में कितना राइज करेगा लिक्विड, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो यू गेट दिस फॉर्मूला, कैपिलरी राइज, ठीक है। और डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन क्या कहता है, डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन जो है, ये टॉपिक जो है इसमें ये कहता क्या है। तो डिटर्जेंट और सरफेस टेंशन के बारे में मैंने बताया था, थीटा शुड बी एक्यूट। थीटा एक्यूट होगा तो क्या होगा, अगर हम जो है बात करें अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ठीक है, एच का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया बच्चों, एच का फॉर्मूला हमने डिराइव किया 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, राइट। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, तो इसका मतलब है कि अगर कपड़ा धोया जा रहा है तो उसके जो पोर्स हैं, उसके जो कैपिलरीज है, उसमें जो है साबुन पूरी तरह से डिटर्जेंट अंदर तक चला जाना चाहिए, ग्रेट डेप्थ तक चला जाना चाहिए। तो ये डेप्थ है, तो ये डेप्थ मोर कब होगी, व्हेन थीटा विल बी लेस। तो साबुन डालने से, डिटर्जेंट डालने से थीटा बिकम्स वेरी लेस, एंड कॉस थीटा विल बिकम मोर। कॉस थीटा ज्यादा होगा। कॉस थीटा ज्यादा क्यों होगा, ये भी समझ लीजिए, ये मैथमेटिक्स की बात है। थीटा 0 के लिए कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा 1 होता है, और थीटा 90 के लिए कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा 0 होता है। इसका मतलब है थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, थीटा ज़्यादा होगा तो कॉस थीटा कम हो जाएगा। तो हमारा थीटा कम होगा, थीटा विल बी अप्रोचिंग टू 0, मीन्स इट विल बी वेरी लेस, एंड देयरफॉर कॉस थीटा विल बी इम्प्रूव्ड। कॉस थीटा इम्प्रूव होने से एच इम्प्रूव हो गया, एच इम्प्रूव होने से क्या होगा, the penetration of the detergent and the soaps will be more. Penetration into the water of the detergent and soap will be more, and they will take out the grease or dirt. तो इसमें होता क्या है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिटर्जेंट है, ये देखिए सोप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाया है, ये हेयर पिन शेप्ड के होते हैं, बराबर है। ये सोप के मॉलिक्यूल्स जो है इस तरीके से वाटर में जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में डिसॉल्व हो गए, और जब यहाँ पे डर्ट आ जाएगा तो ये जो है इनके मॉलिक्यूल्स का एक एंड जो है डर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और डर्ट में अंदर की तरफ डीप चला जाता है,
one end of the soap molecule will be attracted towards the dust and other end will be towards the water. ठीक है. So if we wash the cloth with water, if we wash, see one end is attracted towards the dust or the grease on the cloth. ठीक है. Other end is free, and if we wash this cloth into the flowing water, then the dirt or dust taken captured by the soap or detergent molecules will wash away. Okay, so this is the detergent action. Now students, let us discuss about example 10.12. So what does example 10.12 say? The lower end of the capillary of the diameter 2 mm is dipped 8 centimeter below the surface of the water in a beaker. ठीक है, तो ऐसा केस है. देखिए 8 सेंटीमीटर अंदर जो है ये कैपिलरी ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो है वाटर कंटेनर के अंदर घुसी हुई है और इसका रेडियस 2 mm दिया हुआ है. राइट. अब कहता है what is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at it and in water. Pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble. अब कहता है कि ये ऊपर से प्रेशर लगाया जाएगा. अभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, लेकिन ये प्रेशर यहाँ पे कितना लगाएंगे तो ये जो है नीचे इस तरीके का शेप हो जाएगा. मतलब ये पूरा का पूरा वाटर नीचे आ जाएगा और जो है शेप हो जाएगा इस तरीके का, हेमिस्फेरिकल शेप हो जाएगा. ठीक है, तो ये हेमिस्फेरिकल शेप जो है यहाँ पे एयर है इनसाइड में और आउटसाइड में लिक्विड है, तो ओनली वन सरफेस इज देयर, सो 2s/r फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, इस तरह का शेप हो गया. यहाँ एयर है और बाहर साइड में वाटर है. ठीक है, बाहर साइड में वाटर है, तो ये केस कैसा हो गया, ये पी हो गया इधर और ये पीओ हो गया और ओनली वन सरफेस का केस हो गया. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेशर आउटसाइड द बबल. ये जो पीओ बता रहा है, ये पीओ इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, इस जगह पे प्रेशर कितना होगा. लेट अस टेक माय पेन. इस जगह ये पीओ है, यहाँ पे मैंने पीओ दिखाया है ना, ये पीओ है, तो ये पीओ कितना होगा. तो अगर हम देखें तो ये पीओ होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए प्लस 8 सेंटीमीटर का जो वाटर कॉलम है उसका प्रेशर मिला के हो जाएगा पीओ. ठीक है, तो पहले पीओ निकाल लिया, तो पीओ कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी. तो देखिए पीओ इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया. एच 0.08 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. रो इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ द वाटर इन एमके सिस्टम एंड जी वैल्यू 9.8. तो इससे हमारे 1.02 के लगभग है, 1.01784 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया. तो प्रेशर इनसाइड द बबल कितना होगा, तो अभी अपने को मालूम है पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2s/r फॉर्मूला लगेगा. लगेगा कि नहीं लगेगा. तो आप यहाँ देखिए पीओ तो हमने निकाला, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, तो पी आई माइनस पीओ जो है, पी आई माइनस पीओ 2s/r फॉर्मूला लगेगा. आर मतलब रेडियस ऑफ द कैपिलरी. ठीक है, तो आपकी किताब में ये दिया हुआ है 2s/a फॉर्मूला लगेगा. तो पी आई कितना हो जाएगा, पी आई विल बी पी ओ प्लस 2s/a. ठीक है, तो दैट विल बी द इनसाइड प्रेशर एंड यू कैलकुलेट दिस. देखिए यहाँ कैलकुलेशन दिखाया है, पी ओ की वैल्यू ये वाली रख दी है, ये देखिए यहाँ पे रख दी है. ठीक है, और 2s/r 2 इंटू s/r, ये देखिए मीटर में रखा हुआ है. 1 मिलीमीटर रेडियस है ना, तो 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻³ हो गया. तो 2s/r फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है. And if you add this, it comes out to be 1.02 into 10⁵ Pascal. So pressure inside is 1.02 into 10⁵ Pascal. अब ये क्या कहता है, प्रेशर हो गया, कितना प्रेशर दिया जाए बात हो गई. ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर.
अब जो एक्सेस प्रेशर है वो अपने को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले जब ये ट्यूब ऐसे रखी थी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से था तो नॉर्मल केस था। तो एक्सेस प्रेशर कितना लगा है, एक्सेस प्रेशर के लिए क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें से माइनस कर देंगे, पीआई में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे। तो इसमें से देखिए ये जो है 1.01784 इंटू 10⁵ पास्कल ये पीओ की वैल्यू है, ठीक है। तो ये पी आई माइनस पीओ पूछ रहा है एक्चुअली, एक्सेस प्रेशर जो पूछ रहा है दैट मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट पी आई माइनस पीओ। तो पी आई माइनस पीओ मीन्स 2s अपॉन आर ये पूछ रहा है। तो ओनली 2s अपॉन आर की वैल्यू क्या है, पी आई माइनस पीओ, ठीक है। पीओ की वैल्यू ये है और पी आई की वैल्यू कितनी आई 1.02 इंटू 10⁵ पास्कल। ये पीओ कितना है 1.01784 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला बचा रह जाएगा ना, ये वाला हिस्सा। तो देखिए 0.00146 इंटू 10⁵ लिखा हुआ है ना, ये 146 पास्कल। तो ये सीधे सीधा आंसर आ गया। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल कितना हो गया भैया, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल 146 पास्कल हो गया। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। एंड विद दिस न्यूमेरिकल आवर चैप्टर इज क्लोज नाउ, ठीक है। सो वी फिनिश आवर चैप्टर हियर। Until then, goodbye friends. Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.